अभिनंदन करते हैं। आइए हमारे भी आरिजुर रहमान जी हमारे आगे आइए। राकेश नेगी जी हमारे मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव के, उनका भी स्वागत है और सभी आप लोगों का स्वागत है। आइए ना। अब मैं चनप्पा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने आज के अवसर पर अपने विचार रखें। वेलकम करें सबका। हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं उमाकांत जी, उमाकांत जी, जोशी जी, हमारा प्रेसिडेंट चतुर्वेदी जी, अनीसुर रहमान, राकेश नेगी हमारा मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये नौशाद अली जी हमारे आए हुए, नौशाद अली, परमानंद पांडे जी, सीरियस जर्नलिस्ट सब पता नहीं लग पड़ा जी सर मुझे इसके नाते पूरा रूप ही बदल दिया। As you know, friends, as you know, this is our precious day. जर्नलिस्टों के लिए precious day. November 16th is the father of journalism, John Hickey from Bengal, West Bengal. He has started first newspaper in Calcutta. That is in Kolkata now. It is called Kolkata. In 1780, he started his first newspaper in India. That is Bengal Gazette. Formerly it was called Hickey's Gazette, and later on he has changed it as Bengal Gazette. Not on his name, he has removed his name. So he is the father of the journalism in India. From last 25-30 years, Government of India has declared this day, November 16th, when it was published, November 16th, 1780. So from last 20-25 years, Government of India is declaring and conducting National Press Day, Hajj Press, every day, every year. So we are also conducting National Press Day as journalists, because we journalists should remember the difficulties faced by John Hickey at that time when British rule was in force. I know senior journalists Joshi ji and Ramakant ji, all are young journalists. This is very noble profession, as you know, but it is not having any constitutional status. Ramakant ji, Joshi ji, you are all senior journalists. When the constitution has came into existence in the year 1950, situated by Dr. B.R. Ambedkar. It is not having any constitutional status. Ramakantji, Joshiji, I am repeating the word. It is not having any constitutional status as other three organs of our administration is having. That is Shashikanga, that is legislature, executive, and the judiciary. They are having constitutional powers, constitutional status, whereas this journalism, so-called journalism, so-called the fourth estate of this administration, this country is not having any independent status as constitutional rights. So I request Ramakant ji and Joshi ji to take initiative. We are all young people. I am aged, but journalism may young. So they are senior journalists. They have to speak to state governments and the government of India to take cognizance of national status or constitutional status to this wing, that is journalism. Fourth estate, they are telling, everybody is telling fourth estate, which is not having constitutional status. Journalists are facing so many problems, so many difficulties. Nobody is looking to that. That too, the small and medium newspapers are suffering like anything. Suffering like anything means you don't know. I don't know how many people are publishing the small and medium newspapers. They are suffering and they are vanishing every day because of this
rules and regulations, policies and programs of the respective state and the nation. Anyhow, I am requesting Umakanji, Ramakanji, and Joshiji, like these persons, they should write to the state government, respective state government, and government of India to look into the difficulties of small and medium newspapers. Small and medium newspapers are the backbone of Indian journalism. Nowadays, it is having a constitutional heading. It is not having any right to exercise. So I request Ramakantji and Joshiji to write to state governments and government of India to give constitutional status to journalism. And I request Umakantji, because he is mother institution of all clubs of India. Press Club of India is mother institution of all clubs, journalist clubs, not other clubs. The journalist clubs to look into the problems of small, medium newspapers, rather journalists or journalism. I request him to conduct one program, Meet the Press program by Chief Minister of respective states, because you are the mother institution of Press Club of India, Journalist Club of India. So you have to take initiative, take steps to call all the Chief Minister of throughout India, Umakantji. I am requesting your good self to take cognizance of my words and take initiative to call the Chief Minister. Every Chief Minister is coming 15 days once, 30 days once, एक महीने में. They are coming. You kindly invite them. Ask them what are the problems you are having. Chief Minister, not other ministers. He should be answerable to all journalists, answerable to all public. What is going on in his state? That is one thing. And another thing is my request with Umakantji to have a dialogue with all press clubs of India. Kindly have a dialogue, because they are also facing so many problems. They are also facing so many difficulties. And you take the initiative to conduct, because it is a journalist institution. Press club is not for only playing cards, वगैरह. It is having journalistic activities. The journalistic activities should be conducted on such a thorough way to help the journalists. Arranging symposiums, arranging meetings with other journalists and also presidents of other clubs in India. So I request all of you to be present whenever we call the meeting, because Accreditation Journalist Association is formed under the chairmanship of our leader, Mr. V.S. Chaturvedi. We are having so many members, and we are having 2 executive committee members at present, Mr. Rakesh Negi and Mr. Anisul Rahman. So for some reason they are not able to come here because of so many constraints. Yesterday I faced so many difficulties. 11 hours train late हो गया. 11 hours. Imagine. So it is very difficult to come to Delhi nowadays. All right, it is a personal problem. But the journalists as well are facing so many problems like me. And you have to take the Umakantji, it is a mother institution at head half. Mother institution of the state high. I request you once again to call the journalists to meet the chief ministers and appraise the problems of small and medium newspapers in the respective states. And also I request Ramakantji and Joshi, who are senior journalists, to write letter to Government of India to give a constitutional status to journalism. Or Paramanand Pandyanji is like my choice, because I worked from a district level institution of his IFW, from IFW, KUW is a MDW is a Mandya Journalist Union, Karnataka State Journalist Union, and I am working as his assistant as a National Council member. He is also having so many ideas for the improvement of journalism, journalists, whatever. Kindly take Mr.
is also, and I request all of you to be present here. We have some tea after this meeting, and you kindly express any opinion with regard to journalistic activities in India. Thank you. मैं ज्योति जी से निवेदन करूँगा, हमें ज्योति जी से वो थोड़ा सा हम लोगों को मार्गदर्शन दें। मैं ये अपनी जैसे कि अभी आपने सुना कि मझोले और छोटे अखबारों की बहुत सारी समस्याएं, अनंत समस्याएं, ये समस्याएं आज भी हैं, कल भी रहेंगी और कल थी। लेकिन आज जो समस्याएं हैं वो इतनी ज्यादा है जिसकी कभी अखबार मालिकों ने कल्पना भी नहीं की। कम से कम ये है कि उन अखबारों को संकट से निकालने का एक रास्ता जरूर निकालना है, ये छोटे और मझोले अखबार, और वो रास्ता कोई और नहीं निकालेगा, जो सरकार में बैठे लोग हैं वो निकालेगा। हम मतलब छोटे मझोले अखबारों की ओर से बार बार उनको रिक्वेस्ट की गई है, उनको अपनी समस्याएं बताई गई है, विस्तार से बताई गई है। उन समस्याओं को एक बार नहीं अनेक बार बताया गया है, लेकिन उन समस्याओं पर कोई गौर नहीं कर रहा है। और बड़े अखबारों ने छोटे मझोले अखबारों को से निगल लिया है, खा गए। और एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मेरे सामने हैं, बहुत सारे अखबार हैं। सीकर में एक हमारे मित्र अखबार निकालते थे, उन्होंने कहा कि जब वो भास्कर आया तो मेरा अखबार भी खत्म हो गया। मतलब मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में अब कहीं भी चले, क्योंकि जो समस्याएं हैं छोटे मझोले अखबारों की, वो सबकी लगभग बराबर है। कोई 1-2% अंतर हो सकता है, कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकती है, लेकिन समस्याएं वही है। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की ओर से भी, दूसरे संगठनों की ओर से भी एक दबाव बनाया जाना चाहिए सरकार पर, नैतिक दबाव बनाया जाना चाहिए कि ये भी अखबार हैं, ये भी पत्रकारिता के हिस्से हैं, अहम हिस्से हैं। और कई बार मैंने देखा है कि छोटे अखबारों ने जो खबरें ब्रेक की हैं वो बड़े अखबारों ने उठाई है, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, जो बिल्कुल ग्रामीण अंचल में काम करते हैं, वहां दिल्ली का रिपोर्टर तो नहीं पहुंच पाता है, शहर का रिपोर्टर नहीं पहुंच पाता है। गांव की खबरें तो छोटा अखबार का ही रिपोर्टर निकालता है, और उन्हीं की वजह से ग्रामीण पत्रकारिता जीवित है आज। जन साधारण की समस्याओं को सामने लाने में इन अखबारों की अहम भूमिका है, लिहाजा इन अखबारों को प्रश्रय देना सरकार का काम है। और तो इन सबसे बड़ा जो संकट है वो आर्थिक संकट है, और वो आर्थिक संकट दूर करना कोई मुश्किल नहीं है। विज्ञापन नीति बदल दे सरकार तो आर्थिक संकट दूर हो जाए, लेकिन वो विज्ञापन नीति क्यों नहीं बदली जाती है, क्या कारण है, क्या दबाव है, ये इसका भी एक अध्ययन किया जाना चाहिए और सरकार को कन्विंस किया जाना चाहिए, सरकार पर नैतिक दबाव बनाया जाना चाहिए, ताकि वो विज्ञापन नीति इन अखबारों के अनुकूल बनाई जाए और बड़े अखबार चाहकर भी इन छोटे अखबारों को प्रभावित न कर सके, उनकी जो हैसियत है उसको खत्म न कर सके। तो मेरा कहने का मतलब है, और इसमें आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। सभी लोग चाहेंगे तभी ये काम हो सकता है, अन्यथा ये सिर्फ हम लोग यहाँ भाषण करके चले जाएंगे, समस्याएं वहीं की वहीं रहेगी। हमें प्रैक्टिकली इस पर कुछ ठोस काम करना है, और वो ठोस काम कैसे होगा, ये सब मिल बैठ करके, और आप सभी के सुझाव आमंत्रित मैं कर रहा हूँ, आप अपने सुझाव दें कि इस दिशा में क्या किया जा सकता है, ताकि उससे छोटे और मझोले अखबारों की स्थिति सुधर सके, उनकी स्थिति थोड़ी मजबूत हो सके, वो बड़े अखबारों के कंपटीशन में कमजोर ना पड़े। बस मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, बहुत समय हो गया।
अपनी वाणी को विराम देंगे। अब मैं अपने प्रेसिडेंट उमाकांत जी से कहूँगा कि वो इस अवसर पर अपने विचार रखें, हमको मार्गदर्शन दें सभी को। स्वामी जी को निकलना है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, फिर हमारा चलेगा, बाद में हमारा ये सेशन चलेगा। मैं सबसे पहले तो गोस्वामी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और गोस्वामी जी ने तकलीफ की यहाँ करके, और वो हमारे मेंबर भी हैं, बहुत पुराने प्राचीन काल के। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम दैट ही इज हियर, and I am so grateful to Mr. Chinappa. He came here all the way from Karnataka, and whatever he expressed here his viewpoints about the smaller paper or the they are publishing from the remote villages, remote districts, all parts of the country. I think every organization, small organization, small labor organization, they are in bad state. So on behalf of the Press Club of India, I have noted down the suggestion given by Mr. Chinappa, and मैं स्वागत करूंगा आप सभी का। और सदोली जी अस्वस्थता के बाद भी आए, लगातार मैं उनसे संपर्क में रहता हूँ, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर है हमारे, और बहुत असम में हमारे प्रेस क्लब के। और जोशी जी, उमेश जोशी तो बड़े वेटरन है, हम दिल्ली आए तो सबसे पहले इन्हीं से आमना सामना हुआ, तो क्या सोचा ये उत्तराखंड गए तो हमने कहा और बचेगी, लेकिन उससे ज़्यादा करेगा, तो उससे ज़्यादा इनसे हमारा बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है। और परमानंद पांडे जी बहुत वेटरन है, हमारे बड़े भाई, और वकालत भी कर रहे हैं, जर्नलिस्ट के मुकदमे में भी लड़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की सहायता करते रहते हैं, और अच्छी बातें उनके बारे में सुनते रहते हैं कि लोगों की मदद करते हैं हर तरह से। तो मैं आज फ्रीडम ऑफ प्रेस डे है, और हमारी मोहतरमा लंदन से आए हुए, उनका स्वागत कीजिए आप ताली बजा करके, और मैं उनको भी स्वागत करूँगा। नौसाद भाई ने भी मुलाकात करवाई। तो मेरा यह है कि जो प्रेस फ्रीडम डे है आज, तो देखिए देश में हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस डेमोक्रेटिक कंट्री में या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो दुनिया के महापुरुषों ने बोला कि डेमोक्रेसी एंड फ्री मीडिया, ये आपस में इनका अंतर संबंध है, इनको आप अलग करके नहीं सकते। कोई भी डेमोक्रेसी फ्री मीडिया के, अगर मीडिया फ्री नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। एक दूसरे के एक पूरक है, एक दूसरे के प्रोज एंड पॉइंट्स है। और दूसरी बात क्या है कि जो आज हालात हैं, बदलते हालात हैं, ऐसी सूरत में जब सारी इंस्टीट्यूशंस को डिग्रेड कर दिया गया, डिग्रेड किया जा रहा है। हमारे किसी पार्टी से कोई, ये कोई प्रेस क्लब इंडिया किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी संसदीय परंपरा के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब इंस्टीट्यूशन डिग्रेड होती है तो हम लोगों को दुख होता है। मैं 33 साल से 33 ईयर से पार्लियामेंट कवर करता हूँ, और मैंने देखा कि पूरी दुनिया में, पूरे देश में इतने बदलाव हो गए हैं कि अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में एंट्री बंद कर दी थी पत्रकारों की, तो हमने फाइट किया, बड़े पोलाइटली फाइट किया। मैं स्पीकर से मिला, मैं सेक्रेटरी जनरल से मिला, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये सिस्टम कैसे चलेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने 10-12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में मामले उठाए। तो मैं, क्योंकि आज प्रेस फ्रीडम डे है, तो ऐसे मौके पर हमारे सबकी जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग बहुत संकट में, पूरी इंडस्ट्री संकट में है, और मैंने ये देखा हुआ है, ये पाया हुआ है कि अगर किसी को आप कमज़ोर करना चाहते हैं, किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं, तो उसकी सप्लाई लाइन बंद करें। ये मैंने बेसिक चीज़ कहा। देखिए कि मैं वार रिपोर्टर था, आई वॉज कवरिंग कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इन द्रास, मस्को वैली, कारगिल। तो मैं पूरी कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में वहाँ था, तो मैं आर्मी ऑफिसर से बात करता था। वो कहता था कि हमने यहाँ से इनिमी की सप्लाई लाइन बंद की। तो फिर हम लोगों की जो सप्लाई लाइन है छोटे अखबारों की, मैं भी छोटे अखबार में काम करता था, उसके बाद मैं बड़े अखबारों में आया, लेकिन छोटे अखबार में अगर मैं काम नहीं करता तो बड़े अखबार मुझे क्यों नौकरी देते। जब उन्होंने कहा कि इसका ये छोटे अखबार में इसका इतना एक्सपीरियंस है, तो हमें नौकरी मिली। अपने कागज से नो मम्मी डैडी, कोई साहू चाचा मेरे कॉर्पोरेशन में नहीं थे। तो मेरा ये कहने का मतलब सब लोगों ने स्ट्रगल करके आगे बढ़े। मैं रमाकांत गोस्वामी जी, बहुत समय नहीं लूँगा क्योंकि रमाकांत गोस्वामी जी को जाना है। मैं उनके जाने के बाद और भी डिलीवरी में आपके साथ भागीदारी करूँगा। मैं रमाकांत गोस्वामी जी का तहे दिल से
क्योंकि ये मेरे जहाँ ये थे उसके बाद मैं वहाँ घुस गया मैं इन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन में घुस गया, तो वहाँ मेरे 8-9 साल मैंने वहाँ काम किया। और इतना प्यार, इतना स्नेह, ये नहीं कि वो जब ये पत्रकार थे तो तब मेरे को बुलाते रहते, भाई साहब वहाँ प्रोग्राम है, वहाँ आना, मैं सब मेरे जाता जहाँ जहाँ बुलाते थे। और कोई स्वार्थ नहीं था, ना इनका मेरे से था ना मेरा इनके साथ था। और ऐसे व्यक्ति जब राजनीति में आए तो उन्होंने अच्छा किया और नाम कमाया और अच्छा बेहतरीन काम किया। ही वॉज एडवोकेट टू शीला दीक्षित अपार्ट फ्रॉम मिनिस्टर। मंत्री तो थे ही, लेकिन शीला दीक्षित जी को जो भी अच्छे काम हुए उसमें इनकी भागीदारी, संसदीय कार्य मंत्री थे उनके। तो ऐसे लोग जब राजनीति में आए तो उन्होंने वहाँ भी अच्छा काम किया, राजनीति में भी अच्छा काम किया, पत्रकारिता में भी अच्छा काम किया और समाज सेवा में भी अच्छा काम किया। तो जो अच्छे लोग हैं जहाँ जहाँ उनको बिठाओगे वो अच्छा ही करेंगे। तो मैं इन भावनाओं के साथ उनका स्वागत करूँगा और उनसे कहूँगा कि वो 2 बच्चे अपने मुखार हम लोगों का ज्ञान करें। आज के इस कार्यक्रम नेशनल प्रेस डे के कार्यक्रम में ये अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई विजय शंकर चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी की बड़ी विशेषताएं हैं, बहुत विशेषताएं हैं। अगर आप नहीं भी चाहते तो काम हो जाता है। तो और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि इतने प्रेस वाले हैं यहाँ पर, लेकिन इन्होंने प्रेस का जो बीड़ा उठाया ये अपने अपने प्रशंसनीय है, अपने अपने बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के मालिक कहूँगा, वो जैसा उन्होंने कहा कि मालिक ही है, लेकिन इनसे आशाएं बहुत, जब ये वोटिंग हुई हमारी तो चतुर्वेदी जी तो कुछ ऐसा घुमाते हैं ना सबको, हमें भी घुमा दिया। हमें उमा जी को तो छोड़ नहीं सकते, किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, तो हम उनका भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं उन्होंने। और मेरे भाई, बहुत ही प्रिय भाई है ये जोशी जी। मैं उस समय चीफ रिपोर्टर था, ये भी उस समय एकदम जनसत्ता में चीफ रिपोर्टर थे। दोनों का मतलब हम दोनों आपस में मिले हुए थे, आपस में बहुत, हम उधर देखते थे, ये इधर देखते थे, लेकिन कोई बात होती थी वहाँ एक ही दृष्टि, एक ही जगह, एक ही स्थान पर देखते थे। ये हमारी आपसी संबंध है, बहुत बड़ी बात। एक दूसरे को खबरें भी बताते थे। हाँ, वो अंदर आपके सही बताओ। हमारे चनपा मैं मिला हूँ जब एसोसिएशन का रहमान साहब बड़े पुराने हमारे दिल्ली के, क्या कहते हैं, दिल्ली के रहने वाले और हमारे अच्छे दोस्तों में से एक है। और नेगी जी का जवाब ही नहीं है। और आज आलोक भी बैठा हुआ है। हाँ, आलोक कहाँ बैठे? अरे वहाँ एक तो सबने, अब आलोक गौड़ के जो फादर थे वो भी हमारे साथी थे। क्यों आलोक? रमेश गौड़ को कौन नहीं, एक बहुत अच्छे पत्रकार भी थे और कवि भी थे, बहुत बड़ी बात। और अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पांडे जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। काफी परिस्थितियों में अच्छा लगा, मैं आपका धन्यवाद। देखिए, उमाकांत जी ने कुछ बातें कही हैं, कुछ जोशी जी ने बात कही है, मैं उसका समझ करके मैं अपनी बात को बात करूँ। और उन्होंने भी कहा, जलपा साहब ने, आजकल प्रेस और पत्रकारिता और रिपोर्टर, इन पर बड़ी चर्चा हो रही है आजकल, बहुत चर्चा है। उस चर्चा में सबसे अधिक अगर कोई पीड़ित हो रहा है तो पत्रकार पीड़ित हो रहा है। पत्रकारिता पीड़ित नहीं हो रही है, पत्रकार पीड़ित हो रहा है। पत्रकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दबाव में काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि वो दबाव में काम कर रहा है, बहुत मुश्किल है। ऐसे इस दबाव से निकला कैसे जाए? और सबसे बड़ी बात यह नजर आ रही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज का ये जो संकट है, ये बहुत बड़ा संकट है। मैं आपसे सही बताऊं, बहुत बड़ा संकट है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक बात दूर करना चाहिए, इन सब की आज पत्रकारिता की मार्केटिंग इतनी अधिक हो गई है, कुछ कहने की बात नहीं है। मार्केटिंग बहुत हो रही है, बहुत मार्केटिंग हो रही है। उस मार्केटिंग में ये हो रहा है कि ये अखबार ये है, ये अखबार ये है, ये अखबार ये है, ये पत्रकार ये है, चतुर्वेदी जी ये है, गोस्वामी जी ये है, जोशी जी ये है। ये सब इस तरह के जो एक दौर शुरू हुआ है, इसमें आपकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है।
इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की जा सकती है। आज बहुत ही हमारा नेशनल प्रेस डे है, ये छोटे कमरे से शुरू हुआ, बंद कमरे से शुरू हुआ, ये तो ओपनली होना चाहिए था जहाँ पर लोग दूसरे भी जाने के प्रेस वाले क्या करें। मेरा मानना तो ये है कि चतुर्वेदी जी इसको बड़े पैमाने पर करिए, बड़े पैमाने पर करिए। जब इतने बड़े ये नेशनल प्रेस डे नेशनल राष्ट्रीय पर्व है, ये मैं आपको बताऊँ राष्ट्रीय पर्व है, इसको मैं राष्ट्रीय पर्व कहूँगा और उसके बिना काम नहीं चल सकता है ना। आपको अगर सबसे ज्यादा खतरा आज किस से है, एक वो हमने किसी भी पत्रकार का या पत्रकारिता का सरकारीकरण ना होने दिया जाए, ये सबसे बड़ी बात है ना हम लोग, और जहाँ सरकारीकरण हो रहा है वहाँ हम गिरावट की ओर जा रहे हैं और ये सरकारीकरण बंद होना चाहिए। हमें क्या हो रहा है कि ये बाजारू एक बहुत ऐसा शब्द यूज कर रहा है कि बाजारों में जैसे बिकता है ना, माल बिक रहा है आजकल, बिल्कुल बिक रहा है। ये कभी जोशी जी आपके या हमारे समय में नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था। और जो बात होती है आज तो सब कुछ भी कर, आप जो चाहे करवा दीजिए, जो मैं फैन हूँ उसको कर देंगे। और एक जो आपको सबसे बड़ा, मैं अलग नहीं कह रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके साथ है, हमारा भाई है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, ये आपको हर सेकंड में वहाँ से अनुमान लगा सकते हैं क्या हो रहा है। ये बहुत बड़ा आपके सामने चैलेंज है, चुनौती है। और दूसरी चुनौती सोशल मीडिया जो एक नया आया है, जिसमें फेक न्यूज भी चल रही है। क्यों बताइए। बिल्कुल वो जो सोशल मीडिया ऐसा है, आपको तो एक कितना दबाव में, एक तरफ सोशल मीडिया, एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक तरफ सरकारीकरण है, एक तरफ जो मालिक है उसका धंधा है, वो ये क्या होगा। ये तो एक, मैं आपसे कहता हूँ, ये जो कोरोना के दौरान हमारे कई जन भाई शहीद हो गए, हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। मैं तो चतुर्वेदी जी उमाकांत जी से कहूँगा 200 से ऊपर जर्नलिस्ट कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए। और हम आज सबको श्रद्धांजलि देते हैं, अपनी भावांजलि देते हैं कि वही हम उनको याद करते हैं, वो भी तो थे। और इनके लिए एक, अगर हमारा सैनिक शहीद होता है तो उसके लिए पत्रकार भी किसी सैनिक से कम नहीं है। अगर वो हरा है तो ये समाज के लिए काम कर रहा है, इसके लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। और जो अगर हम कुछ सोचेंगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। जोशी जी ने लघु पत्र, छोटे उसकी पत्रिकाओं के जिक्र किया, बहुत कठिन है। मैं तो चतुर्वेदी का कायल क्यों हूँ, सारे छोटे अखबार बंद हो गए, चतुर्वेदी का अखबार बैंक की चोट में चलता रहा, मेहनत से चला, किसी के आगे सिर नहीं दे, किसी के आगे झुके नहीं, किसी के आगे नहीं झुके। चाहे इनके विचारधारा हमारी पार्टी से कनेक्टेड थी, वहाँ भी नहीं झुके, ये कहते नहीं मुझे पत्रकारिता के काम करना। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये आज वहाँ हमारे सामने चुनौतियाँ हैं जिनको हमें देखना है। रही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात, मैं ये अपील करना चाहता हूँ उमाकांत जी की तरफ से कि वो थोड़ी सख्त हो जाए। लोग कहते हैं कि उनके दांत ही नहीं है, ये बहुत बड़ी बात मैं बताऊँ, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के कोई दांत ही नहीं है, उनके नाखून भी नहीं है, वो कुछ काम अलग है, अपॉइंटमेंट भी कोई मसला नहीं है। जबकि सेमी जुडिशियल स्टेटस, हाँ बिल्कुल, सेमी जुडिशियल बताइए सेमी जुडिशियल स्टेटस है, मतलब वो अगर कोई गलत है तो वहीं से ही वो कह देंगे बच्चा जेल भेजो सत्याग्रह, ये उनका अधिकार है। आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट है, हम क्योंकि अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन जो है हमारे संविधान में दे रखा है भाई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम उसके अनुसार से चल रहे हैं, अपने संविधान के अनुसार से चल रहे हैं, और उसमें अगर हमें कोई नहीं, हमारा जो स्वतंत्रता मिली है हमें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो ऐसी नहीं मिली है। जो हमारे जो संविधान में माता थे वो सब जानते थे, समझते थे इस बात को, लेकिन आज वो सब कुछ कहाँ किधर राइट को जा रहा है, लेफ्ट को जा रहा है, राइट को जा रहा है, लेफ्ट को जा रहा है, बीच में जा रहा है, ऊपर से आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी हास्यास्पद स्थिति हुई है जिसका हमें विचार करना बहुत जरूरी है, हमारे लिए विचार करना। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो आप जानते हैं पंडित जी, मैं पीछे हटने वाला नहीं, तो जहाँ भी ऐसी
दिवस मनाया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, आज उनको भी यहाँ आना चाहिए था। यहाँ हमें बड़े बड़े जो हमारे पत्रकार हैं जिन्होंने अपना जीवन दिया उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ अगले साल होगा, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। अरे जोशी जी जैसे व्यक्ति, इतने पुराने व्यक्ति, आज तो ऐसे लग रहा था शब्द नहीं पहचाने जाते, हरिद्वार पूरा इंडिया ही है मुझे लगता है। नहीं विचारधारा मिले ना मिले है वही। ये चीजें हैं, बहुत पॉइंट है, बहुत इस पर लंबा डिस्कशन चल सकता है, एक पे लंबा डिस्कशन चल सकता है। अखबारों की क्या गति, अखबार का जो मालिक है जो पैसा खर्च करता है वो सोचता मैं शाम को कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, पत्रकारिता कभी किसी जगह सीखी नहीं है, लेकिन वो अखबार का एडिटर इन चीफ है या नहीं? हाँ सच जोशी जी एडिटर इन चीफ है, वो गुनाह नहीं करता ये करना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या हो रहा है, माफ करना, मैं एक दिन ना लोग, जोशी जी आप भी आते हैं मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आपको कई बार मैंने देखा, अब आना शायद आपने बंद कर दिया। 67 आदमी है जो सारे देश को चला रहे हैं, सारे देश को। जो अगर धर्म का कोई तब भी बोल जाएगा, ये भी बोल जाएगा, अगर कोई पॉलिटिक्स है तब भी लेके बोल जाएगा, अगर कोई मर गया तब भी लेके बोल जाएगा, वो ये और दूसरे कोई ऐसे ही नहीं। हम क्या, अगर हमें सोच की मूवमेंट बनानी है, अगर हमारी सोच जो है अगर उसकी मूवमेंट बनानी है तो ये इन बातों पर विचार करना चाहिए। और इस पर एक मैं समझता हूँ सेमिनार करिए, आवाज उठाइए इसकी, सेमिनार कीजिए। और ये हमारे बंद कमरे में हम रहकर काम को गुप्त काम तो कर नहीं रहे, कोई चोरी का काम तो कर नहीं रहे, तो हम बंद कमरे में बैठे, बाहर लॉन में हो और पब्लिक में जाए, हम पब्लिक में जाए, पब्लिक में जाके बात करें कि क्या करना है क्या नहीं करना। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, मैंने आपसे कहा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज आपकी टक्कर है। आप मुझे बताइए, जो सोशल मीडिया में तो हर आज सड़क पर चलता हुआ हर आदमी पत्रकार बन गया, क्योंकि इसके बाद मोबाइल है तो यूज कर रहा है। हाँ, ये अभी वो हमारे लखीमपुर में जो पत्रकार बन गए मोबाइल से वही मैं कह रहा हूँ। तो ये सब चीजें हमें सोचनी चाहिए और इन सब चीजों पर विचार करके हमें एक इसका संगठन बनाना चाहिए और हमें एक होना चाहिए। हम, हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा संप्रदाय, हमारा व्यक्तित्व, सब कुछ क्या पत्रकारिता है और पत्रकार है। और ये दोनों के दोनों, क्या पत्रकार भी है और क्या पत्रकारिता, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा नहीं आ सकता, दूसरे के बिना एक नहीं। लेकिन इसमें ईमानदारी, सच्चाई और वो स्वतंत्रता से पहले की मिशनरी भावना तो रही नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि हम मिशनरी भावना भूखे मर जाएंगे, फिर तो यहाँ मिशनरी भावना तो रही नहीं। लेकिन वो मिशनरी भावना हमें दूसरे ढंग से पैदा कर रहे हैं, दूसरे ढंग से हमें आगे आ रहा है। मैं अधिक समय न लेकर, मेरा टाइम है और मैंने पहले कह दिया था। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। चतुर्वेदी जी आपका आभार और जी आपका आभार। प्रेस ऑफ इंडिया के सामने साथ आया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ है, आप चिंता नहीं करें, आप इनको पकड़ेंगे रखिए बाबा गांधी को। और आप इतनी दूर से चल के आए हैं तो आपके दिल में कहीं है, दिल में दर्द है, उस दर्द को निकालना है हमें, उस दर्द को समझना है हमें। क्यों? ठीक बात है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जाना, मैं आपसे क्षमा मांगूंगा, लेकिन जो मैंने संक्षेप में जो इनको कहने का, हाँ ये इनका कहना ऐसा कहते पत्रकारिता वो पत्रकारिता सरकारी नहीं हो। एक बात ध्यान करें, हम नहीं जानते कि सरकारी हो, क्योंकि पब्लिक की आवाज उठानी है, पब्लिक की बात करनी है, हमें आम आदमी की बात करनी है। और आज हमसे कहा जाता, आज सभी ने शुभकामनाएं भेजी है, चाहे उपराष्ट्रपति है चाहे प्रधानमंत्री है, सभी ने शुभकामनाएं भेजी है। शुभकामनाओं से काम नहीं चलेगा, अब शुभ संस्थाओं से काम चलेगा, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।